Hello students, I am Swarndeep Kaur and welcome to my YouTube channel Atomic N. Today's our class is about the important questions of aldehyde, ketone and carboxylic acid chapter. There is 10 questions for you. There is most important 10 questions for you because our exams are nearby. That's why I only take the very important questions. So our first question. Write the structure of the following compounds. So here some name of compounds are given and we have to draw the structure of these compounds. So our first question is 2-hydroxycyclopentane carbaldehyde. As we know, the carbaldehyde means CHO. That is called carbaldehyde. It's normal name nomenclature of when we do the common nomenclature of aldehyde, then we state carbaldehyde. In IUPAC there is ale, methanal, that is methanol, but in journal one carbon aldehyde is known as carbaldehyde. Normally हम इसको क्या कहते हैं? Carbaldehyde. So 2-hydroxycyclopentane. साइक्लोपेंटेन का मीन्स क्या हो गया? ये हो गया साइक्लोपेंटेन. ओके, एंड 2-hydroxycyclopentane कार्बेल्डिहाइड. कार्बेल्डिहाइड का मीन्स हमें क्या लगाना है उसके ऊपर? CHO. और उसकी सेकंड पोजीशन पे क्या लगा देना है? हाइड्रोक्सी. ओके, देन आवर स्ट्रक्चर इज CHO और उसकी ऑर्थो पोजीशन पर अपने पास में क्या आ जाएगा? हाइड्रोक्सी. ओके, नियर बाई पोजिशन. आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर दो और ऐसे भी ड्रॉ कर दो, बोथ आर राइट. इन सेकेंड क्वेश्चन, अल्फा मेथॉक्सी प्रोपायोनिल एल्डिहाइड. प्रोपायोएल्डिहाइड. ओके, अब हमें पता है अगर वो हमसे पूछते प्रोपेन एल्डिहाइड, then it becomes easy for us because we know there is propane stands for 3 and al for aldehyde. So propanol, if examiner asks us propanol, then it becomes very easy for us. We draw the three carbon structure and aldehyde functional group we add in it. But here examiner asks us propionyl aldehyde. Propionyl aldehyde. Okay, so propionyl का means भी क्या होता है? 3 carbon. There is 3 carbons and aldehyde means out of 3 1 carbon is aldehyde. Second, 2-methoxy. And what is methoxy? Methane and oxygen when attached with each other, then that compound is called methoxy. 2-methoxy, 1 2 3, 2 पे क्या आ जाएगा? Methoxy. And we complete the valency of carbon by adding hydrogen. So our structure for 2-methoxy propanaldehyde is this one. Okay, so take a screenshot. Okay, next our second question. Give the IUPAC name of flowing structures. There is 2 types of questions will be asked. There is first one is draw the structure from the name and second one is write the name of the flowing structure. The second question is the name of structure. So nomenclature करना बहुत easy है. aldehyde, ketone, carboxylic acid हम कर ही से लेते हैं. When there is aldehyde group, then we add al. Okay, and for CO ketonic group we add on, and for COH group we add oic acid. Oic acid. So here as you see here it's CHO. CHO given hai, then 1 2 3 4. There is 4 carbons and then 1 2 3 4 and 4 carbon we use bute. तो इसका नेम क्या हो गया? ब्यूट. And there is double bond is present on the second position. तो क्या हो गया? 2 in यूज लेते हैं डबल बॉन्ड के लिए in, और एल्डिहाइड के लिए क्या यूज में लेते हैं? एल. तो इनेल, ब्यूट टू इनेल. ओके, दैट इज आवर nomenclature IUPAC name for this one structure. Okay, line structure, that is called line structure. सीधे कार्बन वार्बन ऐसे एटम के नेम लिख के नहीं दिए, क्या दिया उसने? ऐसे लाइन लगा दी. देन दैट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज line structure. Second one is, look at here, methyl. Okay, and oxygen OCOME
and this one, that means 1 2 3 4 and 5 compounds are there. methyl का मीन्स क्या है? Me का मीन्स क्या होता है? CH3. Me का मीन्स क्या होता है? CH3. तो हमने इसको काउंट करना है, ओके, एज अ कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 4 पे ये ऐसे लाइन लगी हुई है, डेट मीन्स यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है? CH3. ओके, सो 1 2 3 4 4 पे एज अ सब्स्टिट्यूएंट देयर इज methyl इज प्रेजेंट, सो 4 methyl 5 कार्बन है, तो क्या यूज में लेंगे? पेंट. और डबल बॉन्ड कितने पे है? ये रहा डबल बॉन्ड, कितने पे है? 4 पे. तो 4 पे डबल बॉन्ड है तो क्या लगा दिया? 4 इन. और 2 पे क्या है? ऑन, कीटोन. डबल बॉन्ड O लगा होगा तो क्या होगा? ऑन. ऑन के लिए क्या लगाएंगे? कीटोन के लिए क्या लगाएंगे? 2 ऑन. 2 पे है ना, तो इसलिए 2 ऑन. तो take a screenshot of this question also. Next, third question. Arrange the flowing compound in increasing order of their boiling point. Boiling point के अंदर हमने इसको increase करना है, arrange करना है, sorry. Boiling point के increasing order में इसको हमने arrange करना है. What will be given? देखो क्या दिया हुआ होगा? CH3, CH2, CH2, CHO. Okay. Aldehyde. Second one is alcohol, ether and hydrocarbon. Okay. So as we know, हमें ये पता है कि क्या होता है कि जो अपन बात करें अल्कोहल, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होती हैं विच आर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कंपेयर टू वैन डर वाल्स बॉन्ड्स. दैट मीन्स इफ देयर इज polar compound is present and in another side there is hydrogen bond is present in between two compounds, then the hydrogen bond is stronger bond, that's why its boiling point is increased. Okay, so the compounds which have hydrogen bonds has higher boiling point as compared to van der Waals compounds. Okay, तो हमें पता है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, तो अल्कोहल का जो है बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा. किस वजह से? ऐसे भी पूछ सकते हैं, why the alcohol have higher boiling point as compared to aldehyde. So our answer is alcohol has hydrogen bond in between two molecules, that's why it has more boiling point as compared to aldehyde. तो इसका हो गया अल्कोहल. देन उसके बाद में देखो कंपेयर करते हैं हम किसको? एल्डिहाइड एंड कीटोन को. एल्डिहाइड और कीटोन को, सॉरी ईथर को. एल्डिहाइड एंड ईथर. तो एल्डिहाइड और ईथर में से अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड का जो है पोलैरिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ईथर, दैट्स व्हाई मोर पोलैरिटी, मोर स्ट्रॉन्गर वैन डर वाल्स बॉन्ड्स, दैट्स व्हाई ए. देन उसके बाद में क्या आ जाएगा? C, because hydrocarbons are non-polar in nature, that's why weak van der Waals bond is present, London force is present, that's why it becomes very less stable and has less boiling point as compared to another one. Okay, तो इसका क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? अल्कोहल का, जिसका रीजन है इसका अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. फिर उसके बाद में कौन हो जाएगा? एल्डिहाइड ड्यू टू मोर पोलैरिटी. फिर उसके बाद में ईथर, किस वजह से? पोलैरिटी की वजह से. एंड इसका ये तो मोर पोलैरिटी की वजह से, ये पोलैरिटी की वजह से, और ये नॉन पोलर है इसलिए सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा. ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया थर्ड. टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यूरोट्रोपिन. हाउ कैन यू प्रिपेयर यूरोट्रोपिन फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड? सीधा ऐसे पूछ सकता है कि फॉर्मेल्डिहाइड से आप यूरोट्रोपिन कैसे बनाओगे, या फिर वो कैसे पूछेगा राइट द ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोट्रोपिन, ये भी पूछ सकता है. और इसमें देयर इज अनदर प्रोबेबिलिटी टू आस्क क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द यूज ऑफ यूरोट्रोपिन. तो मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर तीनों चीजों को ऐड किया है. फर्स्ट फॉर्मेल्डिहाइड, अगर वो सीधा पूछ रहा है हाउ कैन यू प्रिपेयर, जैसा मैंने क्वेश्चन में दिया है, हाउ कैन यू प्रिपेयर यूरोट्रोपिन फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड, देन यू ओनली हैव टू राइट दिस रिएक्शन.
फॉर्मेल्डिहाइड 6 मॉलिक्यूल, इसको बैलेंस्ड ही लिखना है, 6 मॉलिक्यूल formaldehyde and 4 mole ammonia and in at low temperature it's convert into यूरोट्रोपिन, ऐसे लिखोगे यहाँ पे, ये क्या है यूरोट्रोपिन एंड वाटर, ठीक है, इसमें से वाटर निकल जाएगा, वाटर फॉर्म्ड एज अ साइड प्रोडक्ट। ओके, अगर इसकी स्ट्रक्चर पूछी है तो स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना देखो बिल्कुल इजी रहेगा, इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना। देखो आपने कैसे ड्रॉ करना है, ऐसे लिखना N, फिर ऐसे लगाना, ठीक है, फिर CH2 CH2 C ये लगा दिया, फिर तीनों के नीचे ऐसे लगाना, फिर तीनों का ऐसे NN बना देना, फिर उसके बाद में ऐसे करना, दोनों साइड वाले N को लेना, ये CH2 कर दिया, यहाँ तक समझ में आया। फिर उसके बाद में ये N के साथ में ये CH2 कर देना, इन दोनों N के बीच में भी CH2 लगा देना, 1 2 3 4 5 6 CH2 आर प्रेजेंट एंड 1 2 3 4 नाइट्रोजन आर प्रेजेंट। समझ में आ गया होगा, है ना, कुछ भी नहीं करना, ये N लेना है, 3 बार में लगा के CH2, फिर तीनों के नीचे N लगा के N, और फिर साइड वाले दोनों N को लेना और उनको आपस में यहाँ पे CH2, और बाद में N के बीच में भी CH2 और इधर N के बीच में भी CH2, बहुत ही ईजी है। यूज देखो इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिन डिजीज, कोई भी यूरिन इन्फेक्शन वगैरह होता है ना, यूरिन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम क्या यूज में लेते हैं, यूरोट्रोपिन लेते हैं, हमने डॉक्टर यूज में लेते हैं। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5th, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन भी पूछ सकता है ना, राइट द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, है ना, what is the product during the aldol condensation, aldol is our product, that's why its name is aldol condensation। next वो पूछ सकता है complete the following reaction, उसके अंदर भी आपको इतना देके और वो आपसे प्रोडक्ट पूछ सकता है। ओके, तो क्या करना है, एल्डोल के अंदर पहले तो ये ध्यान रखना कि एल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन होती है उसके अंदर अपने पास में दोनों एल्डिहाइड ही होती है। ओके, और उन एल्डिहाइड के पास में अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। द मस्ट कंडीशन फॉर एल्डोल कंडेंसेशन इज प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इन द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन डजंट टेक्स प्लेस। तो देखो क्या करना है हमने, देखो इसकी मैकेनिज्म ही देख लो, सीधा सीधा बात है कि दो एल्डिहाइड लिए हैं और अपन से ये एल्डोल है ये बन गया, और साथ में अपने पास में H, वो तो NaOH से निकली जाएगा। आगे देखो इसमें क्या होता है, मैकेनिज्म कैसे है कि NaOH है, लिया हमने बेस लिया है यहाँ पे NaOH, समटाइम्स यहाँ पे आपको KOH भी दिख जाएगा, है ना, ये लिया है हमने NaOH, इसको ब्रेक करेंगे किसमें, Na प्लस एंड OH माइनस में, रिएक्शन यहाँ पे अपना ये OH माइनस करेगा, ये OH माइनस क्या करेगा, एक एल्डिहाइड की अल्फा हाइड्रोजन को निकाल के ले जाएगा, ये ले गया तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। ये माइनस चार्ज वाला जो एल्डिहाइड है ये दूसरे कार्बन के CO ग्रुप वाले एल्डिहाइड ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा ये इधर जाएंगे तो माइनस चार्ज यहाँ पे और प्लस चार्ज यहाँ पे, प्लस चार्ज का मीन्स है कि ये माइनस यहाँ पे अटैक करेगा। समझ में आ गई बात कि जैसे ये CO ग्रुप है ना, तो पहले ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये माइनस का ये प्लस का, इसलिए ये माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पूरी के अंदर पढ़ते क्या है, यही तो पढ़ते हैं कि माइनस होता यही है कि माइनस और प्लस बनते हैं और बाद में आपस में प्लस वाला माइनस पे और माइनस वाला प्लस पे अटैक कर देता है। ये हो गया, यहाँ पे अटैक करने पर अपने पास में प्रोडक्ट क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है। तो इसके माइनस के ऊपर फिर से हम थोड़ा सा वाटर ऐड करते हैं, वाटर ऐड करेंगे तो किसमें, H प्लस एंड OH माइनस में, H प्लस तो यहाँ पे और OH जो है ये वापस कहाँ चला जाएगा, यहाँ से जो Na के पास से लाए थे ना OH लिया था उसको यहाँ पे ये रिटर्न कर देगा और अपना ये प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आई बात। अब देखो क्या होता है, इसकी रिएक्शन आगे भी हो जाती है। आगे क्या होता है कि माइनस H2O होता है यहाँ पे, अगर गिवन हो कि कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन और ऐसे करके और लास्ट में माइनस H2O दे दे, है ना, ये रिएक्शन कंप्लीट ABC ऐसे कह देते हैं कि write the ABC from the following, identify the ABC in the given reaction। तो उसके अंदर वो क्या होता है कि ये ऐसे रिएक्शन दे देता है ना, 2 CH2 OH CH2 लिख के दे देगा, ये A बना देगा, ये B बना देगा एंड C यहाँ पे अपन से पूछ लेगा। तो हमने क्या करना है, ये OH और ये H ये आपस में निकल गए, वाटर निकल गया यहाँ से, तो अपना प्रोडक्ट क्या हो गया,
देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CHO, ये अपना प्रोडक्ट होता है। यहाँ समझ में आई बात? इस तरह से अपना डी प्रोडक्ट ये हो जाएगा। इसको भी आप लिखना चाहो तो आगे लिख सकती हो कि A, B और C अपने पास में ये आ जाता है। समझ में आई बात भाई? तो इसको मैं रब कर देती हूँ यहाँ पे जो भी खराब किया है। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पॉपऑफ्स रूल्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। पॉपऑफ रूल के पॉपऑफ रूल होता है कि जब ऑक्सीडेशन करते हैं, कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा, तो हमें पता है कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे CO के पास में देखो, जो CH जब सिमेट्रिक है देन देयर इज नो प्रॉब्लम। इफ द कीटोन इज अनसिमेट्रिक और वी कैन से द मिक्स्ड कीटोन इज प्रेजेंट देन देयर इज अ प्रॉब्लम टू मेक इट ऑक्सीडाइज। क्या होता है कि अब ये भी हो सकता है कि ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटे, ये भी CH3COOH हो जाए और ये भी CH3COOH हो जाए। ओके, ये भी हो सकता है। और हो सकता है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो ये HCOOH हो जाए और ये CH3CH2 एंड COOH हो जाए। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कि CO के कार्बन के दोनों साइड में से कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है, which bond we have to break down during the oxidation of ketone, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए रूल दिया है पॉपऑफ रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द CO group goes with the smaller alkyl group during the oxidation of ketone। ऑक्सीडेशन के ड्यूरिंग क्या होगा कि जो CO ग्रुप है ना, ये छोटा, जैसे इधर देखो ये तो CO ग्रुप हो गया, इसके पास में एक तो ये है मैथिल और ये है प्रोपिल ग्रुप, तो ये CO किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा। डेट मीन्स बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा। तो अपने पास में कंपाउंड हो गया CH3 COOH एंड CH3CH2 और इसका भी क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन and it's convert into COH group. That's why there is two compounds are present, acetic acid and propionic acid. Okay. Next, कैनिजारो रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन दोनों के अंदर बस इतना सा है कि जो एल्डोल कंडेंसेशन है उसके अंदर वी हैव टू डू द मस्ट कंडीशन इज presence of alpha hydrogen, but in Cannizzaro the must condition is absence of alpha hydrogen। एल्डोल कंडेंसेशन सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन होने पर ही होगा और जो कैनिजारो है उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा तभी वो रिएक्शन कैनिजारो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ओके, व्हाट इज कैनिजारो रिएक्शन, फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पे आप बेंजाल्डिहाइड भी ले सकते हो, अगर ऐसे गिवन है तब भी रिएक्शन कौन सी होगी, कैनिजारो, बिकॉज हियर नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो गिव्स कैनिजारो रिएक्शन। ओके, QH है, यहाँ से QH सेम वही मैकेनिज्म है, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो बन गया CH3COH और एक बन गया HCOOH, है ना। यहाँ पे HC ये थे, दो थे अपने पास में, है ना, तो एक से तो क्या बन गया CH, यहाँ पे H जुड़ गया और यहाँ पे भी H जुड़ गया, ये हट गया, ये एक ही हो गया, तो क्या बन गया CH3OH एल्डिहाइड। इसमें क्या हो गया CO, यहाँ पे क्या अटैक कर गया ओके, तो क्या बन गया एक था अपने पास में HCOH, तो ये H तो निकल के कहाँ चला गया, वहां चला गया और इसकी जगह पे क्या आ गया था OK। बस समझ में आ गई बात, बस यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है कैनिजारो रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन में दोनों को आपस में जोड़ना है और कैनिजारो के अंदर क्या करना है, एक को तो किसमें कन्वर्ट कर देना है हमने अल्कोहल में और दूसरे वाले को एसिटिक एसिड में, या अपन इसमें है ना मेथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। एक और देखो, अगर अपन ने एल्डोल का अगर आपको सीधा ही याद रखना हो तो ये है अपने पास में इस तरह से दो होते हैं,
तो इनको आपस में ही जोड़ना है। आपस में जोड़ते टाइम क्या करना है कि एक का तो OH निकाल देना है, ठीक है, उसको तो जो CHO है, CHO ग्रुप एक का तो चेंज होगा और एक का सेम रहेगा, यही होता है। तो जैसे मान लो ये है तो इसका तो CH2 CHO कर दो और इसके साथ में जो ये है इसका OH बना दो और CH3 रख दो। समझ में आ गई बात? ये वाला तो एक हाइड्रोजन हटा के ऐसे लगा दिया और उसके साथ में यहां से शुरू कर दिया और इसको किसमें, OH में, और CH3 वैसे का वैसे। इसका सीधा सीधा प्रोडक्ट बन के आ जाता है। एल्डोल की पूरी मैकेनिज्म नहीं करनी पड़ती, इसको याद रखना भी इजी होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन? देखो कीटोन जो है वो मैक्सिमम जो अपने सॉल्यूशंस होते हैं उनके साथ में टेस्ट नहीं देता, बट एल्डिहाइड गिव द ऑल टेस्ट लाइक सिप बेस, टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉर्ट आउट करना है। सिप बेस gives the test with aldehyde but not in with ketone. Tollens reagent also give the test with aldehyde but not with ketone. And like Pelling solution also give the test with aldehyde but not ketone. Ketone ये टेस्ट नहीं देता। बस ऐसे ही करना है, ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन? सेम इसी पैटर्न से आता है और इसको करना भी इसी तरीके से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फ्लोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, pKa एसिडिटी, if acidity asked then directly proportional to Ka and inversely proportional to pKa। यानी कि हम pKa निकालना हमारे लिए थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है। वी कैन फाइंड आउट एसिडिटी वेरी इजी। ओके, तो हम एसिडिटी को निकालेंगे और उसका जस्ट अपोजिट क्या कर देते हैं, pKa कर देते हैं। तो देखो अपने पास में है एसिडिटी निकालने के लिए, एज वी नो देयर इज -I effect radical or we can say compound is present, element is present, then acidity increase. If -I effect works on our compound then acidity increase. तो -I किसका लग रहा है, क्लोरीन कैसा इफेक्ट लगाता है, -I इफेक्ट लगाता है एंड देयर कार्बन शो +I इफेक्ट। तो जितना पास में लगा होगा इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा होगा। तो हमें पता है सबसे पास में यहाँ से एसिडिटी शो होनी है, इसके जस्ट पास में ये रहा, यानी कि सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी है, डी की है। उससे कम एसिडिटी 1 कार्बन, फिर 2 कार्बन और ये 3 कार्बन, ये 1 कार्बन 2 पे ये बी के अंदर लगा है, फिर उसके बाद में कौन है, सी पे लगा है, और डी में कोई माइनस वाला लगा ही नहीं है, प्लस वाला लगा है, तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। ये तो एसिडिटी का ऑर्डर है अपना, है ना। और इसका जस्ट अपोजिट क्या कर देना है हमें, pKa, क्योंकि जस्ट अपोजिट है। तो pKa के लिए सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, A, फिर क्या हो जाएगा C, देन B एंड सबसे कम D हो जाएगा। तो ये pKa आजकल ज्यादातर वो क्या ही पूछता है, pKa ही पूछता है, क्योंकि pKa जो होता है ना वो थोड़ा सा निकालना टफ हो जाता है, क्योंकि जस्ट अपोजिट होता है। हमें एसिडिटी बेसिसिटी निकालने के लिए हम यूज टू होते हैं, और उस केस के अंदर अगर वो pKa पूछता है तो अपन एसिडिटी के बेस पे ही उसको कर देते हैं, हम ये ऑर्डर लिख के आ जाते हैं, जो कि क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए हमने उसका जस्ट अपोजिट कर देना है, जो एसिडिटी का ऑर्डर है उसका जस्ट अपोजिट अपन किसका कर देते हैं, pKa का कर देते हैं। इफ Ke इज आस्क्ड देन वी विल डू द जो आंसर है वो बिल्कुल सेम उसी का ही कर देते हैं, एसिडिटी वाला, क्योंकि Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, नाउ और लास्ट क्वेश्चन, orthonitrobenzoic acid is more acidic as compared to paranitrobenzoic acid. Why? orthonitrobenzoic acid है वो paranitrobenzoic acid से ज्यादा एसिडिक है। रीजन बताना है कि why orthonitrobenzoic acid is more acidic as compared to para. As we know there is ortho effect is present. Ortho effect works on benzoic acid as well as aniline. In benzoic acid, due to ortho effect, the acidity of benzoic acid increase, whereas in aniline, due to ortho effect, the basicity of aniline decrease. Okay, ये हमें ध्यान में ही रखना है कि ऑर्थो इफेक्ट की वजह से जो एसिड है, बेंजोइक एसिड है, उसकी एसिडिटी तो इंक्रीज होगी, और जो एनिलीन है उसकी बेसिसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, व्हाट इज ऑर्थो इफेक्ट? ऑर्थो इफेक्ट अकॉर्डिंग टू बेंजोइक एसिड,
बेंजोइक एसिड के अकॉर्डिंग कैसे है कि बेंजोइक एसिड की अगर ऑर्थो पोजीशन पर डजंट मैटर इट्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. If ortho position is occupied by any type of group, then our COOH group goes to out of plane. That's why the resonating structure increased, resonance increased, and we know that if there is infinite resonating structures are present, then compounds becomes more and more stable. That's why the acidity of benzoic acid is increased due to the ortho effect. Okay, ortho effect की वजह से क्या होता है कि जो ये वाला है ना, ये वाला कंपाउंड है अपना, देखो ये ऑर्थो पे लगा हुआ है, ऑर्थो पे लगने की वजह से ये वाला ग्रुप कैसा हो जाएगा, प्लेन से बाहर चला जाएगा. अभी तो क्या है, ये रेजोनेंस ये भी इसको कंपीट कर रहा है, रेजोनेंस ये कंपीट कर रही है, तो उस वजह से इसके अंदर ये हो रहा है, लेकिन इसकी एसिडिटी कम हो रही है ना. लेकिन अगर ऑर्थो पोजिशन पर कोई ग्रुप आ गया है तो ये कैसा हो गया, आउट ऑफ प्लेन ऐसे हो गया है ना, पहले ऐसे था और अब कैसा हो गया, ऐसा हो गया. तो ऐसा होने पर ये आपस में क्या करता रहेगा, रेजोनेंस शो करता रहेगा, इस वजह से इसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, चलिए ये हो गया पूरा. आपके 10 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. ओके, देयर इज 10 क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड today's class. In next class I'll also take 10 questions for you from amine chapter. Okay, then organic chemistry is completed, and also take some important name reactions. I'll try to take minimum to minimum name reactions because there is lack of time. That's why I'll try to do best to take the result from you. Okay, thank you.